ମୁଁ ଅନିତା ଦାସ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭର୍ଚୁଆଲ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଜୈବ ବିବିଧତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଚାଲ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ନିକଟକୁ ଯିବା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟା ଆମର ଜୈବ ବିବିଧତା। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜଗତ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ। ଏଠି ତୁମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ମଶା, ଜିଆ, ବେଙ୍ଗ, ମାଙ୍କଡ଼, ମନୁଷ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଆକାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନେବା ତାହେଲେ ଆକାର ଅନୁସାରେ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଏହି ତିମି ମାଛକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ତିମି ମାଛର ଆକାର ମୁଖ୍ୟତଃ 30 ମିଟର ଲମ୍ବ ଥାଏ। ଏଠି ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛେ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଆକାର, ଏହା ଏକ ଅଣୁଜୀବ। ଆମେ ଏହାକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥାଉ। ଏହାର ଆକାର କିଛି ମାଇକ୍ରୋମିଟରରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗଣିଥାଉ। ଏବଂ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ରେଡଉଡ୍ ଗଛ, ଏହାର ଆକାର ପ୍ରାୟତଃ 100 ମିଟର ଉଚ୍ଚ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ରଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖିଥାଉ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏହା ଗୋଟିଏ କାଉ, ଯାହାର ରଙ୍ଗ କେବଳ କଳା, ଶୁଆର ରଙ୍ଗ ଶାଗୁଆ ଏବଂ ଏହାର ଥଣ୍ଟର ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥାଉ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବୟସ କାଳରେ ଭିନ୍ନତା। ଏଠି ତୁମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କଇଁଚର ବୟସ ମୁଖ୍ୟତଃ 200 ବର୍ଷ। ମଶା ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ 2 ରୁ 3 ଦିନ ମାତ୍ର ବଞ୍ଚେ। ଏଠି ତୁମେ ଆମେ କଲିକତାର ବଟନିକାଲ ଗାର୍ଡେନରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବରଗଛ ଦେଖିବା, ଏହି ବରଗଛର ବୟସ 200 ବର୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଏଠି ଆମେ ଯଦି ଧାନ ଗଛର ଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛେ, ଧାନ ଗଛର ବୟସ ମାତ୍ର 6 ରୁ 8 ମାସ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଜୀବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ସହାବସ୍ଥାନକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ଜୈବ ବିବିଧତା, ଜୀବ ଜଗତର ବିବିଧତା ବା ଜୀବ ବିବିଧତା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାମାନେ ଏତେ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଗୋଟିଏ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ହିଁ ଆମେ ଜୈବ ବିବିଧତା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜୈବ ବିବିଧତା ତାହା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇନି, ଏହା କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷର ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଘଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ବହୁତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜୀବ ବିଲୁପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ ଜାତିର ଜୀବ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ତୁମେ ମଣିଷର ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ। ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ଏହିଭଳି ଭାବରେ 4 ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଚିତ୍ର, ଯେ ନିଜର ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ତାର ଶରୀରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ତେଣୁକରି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଅନେକ ବର୍ଷରେ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଟ୍ୟାକ୍ସୋନମି ବା ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ସ। ତ ଜୀବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଣକୁ ନେଇ ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବହିରେ ଲେଖିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସୋନମି ବା ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ସ ବୋଲି କହୁ। ତ ଜୀବମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପଦ୍ଧତିକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସୋନମି ବା ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ସ ବୋଲି କହୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଜୀବମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିଥାଉ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ଆବଶ୍ୟକତା ବା କଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନିବା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା। ଜୈବ ବିବିଧତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମିଳେ। ଜୀବମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, କଣ ସମାନତା ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ମିଳେ। ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ, କିପରି ଜୀବମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ମିଳେ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳ ଆମେ ଜାଣିଥିବା, କିଛି ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଜୀବ, କିଛି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ରହୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳ, ରାଜସ୍ଥାନ ଭଳି ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜୀବ। ତେଣୁକରି ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କର ବିସ୍ତାର ବିଷୟରେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗବେଷଣା ତଥା ପରିଚାଳନା ଓ ପ୍ରୟୋଗ
विषय एवं जीव मान को चिन्हट कर श्रेणी विभाग करने द्वारा संभव हो पारि थाए। बर्तमान आम देखा यह जीव मान को प्रथमे नामकरण किपरि होइथिला। तो जीव मानकर नामकरण प्रथमे स्वीडेन रो वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस, ये चित्रटी तुम देखि पारुथिबो पिला माने, कैरोलस लिनियस प्रथमे यही श्रेणी विभाग विषय कही तेणुक उद्भिद प्राणी विज्ञान आधुनिक वैज्ञानिक नामकरण जनक बोली कह जाए। से यही वैज्ञानिक नामकरण को प्रथमे जो पुस्तक लिपिबद्ध करथिले से पुस्तकर ना हेउछि सिस्टम नेचुरे। एटी तुमे तार चित्रटी देखि पारुथिबो एवं से जहाँ भी लिपिबद्ध करथिले से सब ना गुड़िक ICBN बा अंतर्जातीय जैविक नामकरण नियमावली द्वारा गृहीत एवं नियंत्रित हेबा आवश्यक। जहाँ भी आमे चाहिले लिखि परिबा नाही, तेणु करी जेउ नाटी से लिखिसंती सेगुड़िक ठीक भाबरे कौन ICBN संस्था द्वारा गृहीत होइछि, जहाँ फल एही ना को समस्ते वर्तमान पृथ्वी सारा समस्ते एही ना को व्यवहार करि पारिबे। वर्तमान आमे से द्विपद नामकरण पद्धति विषय देखिबा किपरि भाबरे से द्विपद नामकरण पद्धति बा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करिथिले। एठी प्रथमे देखिबो प्रथम पद्धति, एही नार प्रथम पदटी हेउछि प्रजाति बा जेनस बोली कहा जाए एवं द्वितीय पदटी हेउछि जाति बा स्पीसीज। तो प्रथम ना जो प्रजाति एटा काहार ना, एटा मुख्यतः लैटिन शब्द रु आसीछि एवं जातिर नामकरणटा प्रत्येक जातिर बासस्थान एवं से जीवटी विषय प्राथमिक वर्णना एवं देइथिबा वैज्ञानिक नाम अनुसार थाए किंबा जीव मानकर शारीरिक विशेषत्व अनुसार जाति दिया जाए। हैला बुझी पारिलो। तो दुई पदटी कौन अछि, गोटे हेउछि प्रजाति अन्यटी हेउछि जाति। वर्तमान आमे देखिबा मनीषर मध्य सेहि भली भाबरे वैज्ञानिक नामकरण कराइछि। मनीषर वैज्ञानिक नामकरण हेउछि होमो सापियन्स। एठी होमो हेउछि प्रजाति एवं सापियन्स हेउछि जाति। हैला दुईटी पद अछि तुमे देखि परछो। प्रथम पदटी हेउछि प्रजाति, द्वितीय पदटी हेउछि जाति। तेणु करी ए पद्धति को आमे दुई पद नामकरण पद्धति बा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोली कहूछु। बुझी पारलो। वर्तमान आमे आउटिए भलो भाबरे देखिबा। तो ए श्रेणी विभाग पद्धतिर दुईटी पद अछि। तो क्षुद्रतम विभागटी हेउछि कोन, क्षुद्रतम विभागटी हेउछि जाति एवं ए जाति मानकर समाहार को नेकिरे हमर विभागटा होछि प्रजाति। जाति बा स्पीसीज एवं प्रजाति बा जीनस। एपरि भाबरे आमे जीव मानकर नामकरण करिछे। तुमे देखु चित्र रे देखुछ, एटा होछि गोटे सिंहर चित्र। एहा को आमे साधारण ना कोन सिंह, एहार जाति हेउछि लिओ एवं प्रजाति होछि फेलिस। तो यार वैज्ञानिक नामकरण कौन हेबो फेलिस लिओ। सेहि भली भाबरे बाघ, बाघर जाति हेउछि टाइग्रिस, प्रजाति हेउछि फेलिस एवं एहार वैज्ञानिक नामकरण होछि फेलिस टाइग्रिस। बिराड़ी जाति हेउछि डोमास्टिका, प्रजाति होछि फेलिस, तो इठी होछि फेलिस डोमास्टिका। सेहि भली भाबरे कलरा पतरिया बाघ, एहार जाति हेउछि पार्डस, प्रजाति हेउछि फेलिस एवं यार पूरा नाम होछि फेलिस पार्डस। पिला माने एठी तुमे देखि पारुथिबो गोटे सिमिलर जिनिस। एठी सबो गुडिकर प्रजाति मुख्यतः फेलिस अछि। देखि पारुछ कि नाही, काहे कि एभଳି हेछि। आमे कहिले जेतेबेले श्रेणी विभाग को आधार करा गला सेतेबेले समान प्रजातिर जीव मान को गोटिए श्रेणी रो करा गला। जेभଳି भाबरे बाघ, सिंह, बिराड़ी एवं कलरा पतरिया बाघ एमानकर तुमे देखिले आकार समान देखा जाउछि। एमानकर हातरे पंजा अछि, दांतरे बड़ स्वान दांत अछि बा बड़ मुनिया दांत अछि एवं एमाने मांस को फाड़ी फाड़ी खाइबे। तेणु करी एमानकु समान प्रजाति रे रखा जाइछि। से प्रजातिटी हेउछि फेलिस। किंतु जातिर नामटा सबुबळे से जीवटी को विशेष भाव में चिन्हिया दिया जाए। तेणुक जाति अलग देखि पारुथिबो। सिंहर जाति हेउछि फेलिस लिओ, बाघर जाति हेउछि टाइग्रिस, बिराड़ी हेउछि डोमास्टिका एवं कलरा पतरिया बाघ हेउछि पार्डस। एमती भी हेई परिबो जो जीव माने समान अछंती सेमानक प्रजाति समान अछि एवं सेमानकर जाति अलग। तेणुक एही भाव में एई चारोटी समान प्रजातिर बोली एमानकर प्रजाति हेउछि फेलिस
एवं जाति तांकर विशेष ना को सूचौछि तेणुकर जातिटी अलग अछि बुझी पारलो। बर्तमान आम देखा किसी उद्भिद मानकर नाम एठी देखी पार्छ पिला माने दुईट उद्भिद प्रथमे देख बर गछ और अश्वत्थ गछ। बर गछर जाति होउछि बेंगालेंसिस एवं अश्वत्थ गछर जाति होउछि रिलिजियोसा। किंतु प्रजाति को देख पिला माने यार प्रजाति होउछि फाइकस यार प्रजाति मध्य फाइकस। तुमे कुह दुईटा मध्य सिमिलारिटी अछि कि नहीं? निश्चिंत भाव में सिमिलारिटी अछि। दुईटी जाक बहुत बड़ वृक्ष होती अधिक वर्ष बंचती एवं सेमानकर पत्रर आकार भी पाखापाखि समान थाए किंतु शारीरिक गठन समान अछि तेणुकरी एमानकु समान प्रजाति नियाइछि। एमानक प्रजाति हेउछि फाइकस किंतु जाति अलग अछि। बरगछर जाति हेउछि बेंगालेंसिस तेणुकरी यार वैज्ञानिक नाम हेउछि फाइकस बेंगालेंसिस। सेही भली भाबरे अश्वत्थ गछर जाति हेउछि रिलिजियोसा तेणुकरी यार वैज्ञानिक नाम हेउछि फाइकस रिलिजियोसा। बर्तमान आम धान गछ देखा। धान गछर जाति होउछि साटिभा एवं प्रजाति होउछि ओराइजा तेणु यार वैज्ञानिक नाम होउछि ओराइजा साटिभा। सेही भली भाबरे मटर गछर जाति होउछि साटिभम प्रजाति होउछि पाइसम तेणु यार वैज्ञानिक नाम होउछि पाइसम साटिभम। पिला माने तुमे देखि पारुथिबा प्रथमे प्रजातिर नाम लेखा जाउछि एवं परे जातिर नाम लेखा होउछि। जदि आमे आको इंग्रजी रे लेखिबा ताहले किभली भाबरे लेखिबा? प्रकृत रे एही ना गुडिक जो सिस्टम जो बही आमे देखिले बा कैरोलस लिनियस जो लिखिथिले से मुख्यतः इटाली लिपि रे लिखिथिले तेणु करी इटा किंतु आमे जेहेतु इटाली लिपि जने आमे इंग्लिश रे लेखिबा ताहले आमे मने कर लेखिबा ओराइजा साटिभा। एटा केमति लेखिबा? ओ आर वाई जेड ओराइजा लेखिबा एवं साटिभा लेखिबा। एमति आमे लेखिबा। जदि इंग्रजी नाम लेखिबो ताहले इंग्रजी नाम लेखिले सबुबले प्रजातिर प्रथम अक्षर को बड़ अक्षर बा कैपिटल लेटर करिवो एवं जातिर प्रथम अक्षर को स्मॉल लेटर करिवो एवं सबुबले याको तुमे अंडरलाइन करिवो यार तळे गारो देबो। किंतु जेहेतु आमे ओडिया रे लेखुचो एटा लेखिबा आवश्यक नुहे किंतु तुमे जदि इंग्रजी रे लेखिबो ताहले एई बळे भाबरे प्रजातिर ना को प्रथम अक्षर को तुमे कैपिटल लेटर रे लेखिबो एवं जातिर प्रथम अक्षर को स्मॉल लिपि बा छोट लिपि रे लेखिबो एवं सेगुडी को तळे तुमे गारो देबो। हला एटा होउची एक्चुअली प्रकृत रे लेखिबार नियम। हला तुमे मने रखिबो ए सब गुडी को मने रखिबा जरूरी। वैज्ञानिक नाम परीक्षा रे साधारणतः शॉर्ट क्वेश्चन बा एमसीक्यू क्वेश्चन आसी थाए तेनु करे एगुडी को मने रखिबा जरूरी। अच्छा वर्तमान जीव जगतर श्रेणी विभाग केवल नामकरण कले हेबनी सेमानकु आहुरी मध्य श्रेणी विभाग करा जाय जेमती अनेक गुडी जातिर समाहार को नेकिरी प्रजाति प्रजातिर समाहार को नै वंश वंशर समाहार को नै वर्ग वर्गर समाहार को नै श्रेणी श्रेणीर समाहार को नै पर्व एवं पर्वर समाहार को नै आमे उद्भिद जगत किंबा प्राणी जगत एही भली भाबरे श्रेणी विभाग करिथौ। एहाको मध्य पर्व गुडी को मध्य उपपर्व श्रेणी मध्य उपश्रेणी वर्ग मध्य उपवर्ग वंश मध्य उपवंश एही भली भाबरे मध्य आहुरी श्रेणी विभाग करि जायथे। तेणु करी जीव मानक विषय जेते अधिक तथ्य नेबा सेही भली भाबरे आमे जीव मानक विषय बेसी भलो भाबरे जानि परिबा। वर्तमान प्रथमे एटी देखिबा अरिस्टोटल मध्य जेतेबेले जीवमानक श्रेणी विभाग विषय रे आलोचना करा जाउथिला बा चिंता करूथिले वैज्ञानिक माने सेतेबेले ग्रीक रो दार्शनिक अरिस्टोटल जीवमानक वासस्थान अनुसार तीन भाग रे विभक्त करिथिले। स्थल भाग जिपरि बाघ सिंह हाथी गाई जल भाग रे थिबा जीव मान गोटे श्रेणी विभाग करथिले जेबई माछ कंकड़ा कइंच चिंगुड़ी एवं वायुमंडल थिबा जीव माने विभिन्न प्रकार पक्षी मानको गोटे श्रेणीभुक्त करथिले किंतु एतिके करिबाटा उपयुक्त नथिला। तापरे श्रेणी विभाग आधार को तीनोटी मुख्य आधार रे विभाग कराइछे। प्रथमटी कोष संरचना शरीर गठनर प्रणाली एवं अन्यटी हेउछे खाद्य प्रस्तुति प्रणाली। कतन कोषर संरचना अनुसार देखा सरल कोष को मुख्यतः प्राक्नेस्टीय कोष बोली कहागला एवं देखा जटिल कोष को मुख्यतः सुनेस्टीय कोष बोली विभाग करागला बा जहार न्यष्टि सुसंगठित नुहे सेगुड़िक प्राक्नेस्टीय कोष एवं जहार न्यष्टिटी सुसंगठित ताकु आमे सुनेस्टीय कोष एही बड़ी भाबरे दुई भागरे विभक्त करले।
এবং এটি তুমি দেখি পারছো ପ୍ରାକ୍ନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷରେ ଆମର ହେଉଛି ଏମିବା ଏବଂ ସୁନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଘ ଭାଲୁ ମନୁଷ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହାପରେ ଶରୀର ଗଠନର ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଜୀବକୁ ଆମେ ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଷର ସମାହାରରେ ହେଇଥିବା ଜୀବକୁ ଆମେ ବହୁକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ଭଳି ବିଭାଗ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଦେଖିଥିବ ଚିତ୍ରରେ ଏମିବା ଏବଂ ବହୁକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବାଘ। ତୃତୀୟ ଆଧାର ଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଜୀବ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ, ଯେଭଳି ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଏବଂ ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଏହି ସ୍ୱଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଜୀବଙ୍କ ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଗଲା। ଏହାପରେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପଞ୍ଚ ଜଗତ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ନାମକରଣ କରାଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ କେବଳ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ। କିନ୍ତୁ ପରେ 1844 ମସିହାରେ E.H. ହେକେଲ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ନାମକ ଏକ ଏକକୋଷୀ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ତିନି ଜଗତ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ 1959 ମସିହାରେ ରବର୍ଟ ହୁଇଟାକର ପଞ୍ଚ ଜଗତ ବିଶିଷ୍ଟ ବା କୋଷର ପ୍ରକାର, କୋଷ ଭିତ୍ତି, ନ୍ୟସ୍ତି ଝିଲ୍ଲି, ଶରୀର ସଂସ୍ଥା, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଭିତ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ପଞ୍ଚ ଜଗତ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷ, ଯାହାକୁ ଏକକୋଷୀ ମନେରା କରିଲେ। ତାପରେ ସୁନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷ। ସୁନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷକୁ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ଏକକୋଷୀ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ଏବଂ ବହୁକୋଷୀୟ ସୁନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷ ମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଦୁଇଟି ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି, କୋଷ ଭିତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ କୋଷ ଭିତ୍ତି ବିହୀନ। କୋଷ ଭିତ୍ତି ବିହୀନ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଏନିମଲିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଦୁଇଟି ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଫଞ୍ଜାଇ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟି ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଦେଖିବା। ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ବହୁକୋଷୀୟ କୋଷ ଭିତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଭିଦ। ଏମାନେ ସ୍ୱଭୋଜୀ, ଯେହେତୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିଜେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସବୁଜ ଅଂଶରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଥିବାରୁ ଏମାନେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିପାରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଚିତ୍ରରେ, ଚିଙ୍ଗୁଡିଆ ଦଳ, ଆଖୁ, ପଦ୍ମ, ବରଗଛ, ଘାସ, ଏଜୋଲା। ତାପରେ ଆନିମଲିଆ ବା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ, ଏମାନେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ବିହୀନ ଏବଂ ବହୁକୋଷୀୟ ପ୍ରାଣୀ। ଚିତ୍ରରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଜୀବ ଜିଆ, ପ୍ରବଳ, ମାଛି, ମଶା, ଗେଣ୍ଡା, ସମୁଦ୍ର ତାରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଛ, ବେଙ୍ଗ, ସାପ, ପକ୍ଷୀ, ମାଙ୍କଡ ତଥା ମନୁଷ୍ୟ ଏଥିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପ୍ରାଣୀଟିକୁ ପୁନର୍ବାର ବିଭକ୍ତିକରଣ କରାଯାଇଛି। ଅବିଭକ୍ତ ଶରୀର ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କୁ ଥାଲୋଫାଇଟା କୁହାଗଲା ଏବଂ ବିଭକ୍ତ ଶରୀର ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଭାସ୍କୁଲାର ଟିସୁ ବିହୀନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା ବୋଲି କୁହାଗଲା ଏବଂ ଭାସ୍କୁଲାର ଟିସୁ ବିଶିଷ୍ଟ। ଭାସ୍କୁଲାର ଟିସୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କିଛି ଯେଉଁମାନେ ବୀଜ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ମଞ୍ଜି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟେରିଡୋଫାଇଟା ବୋଲି କୁହାଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମଞ୍ଜି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ବା ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ଏବଂ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ। ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ମୁଖ୍ୟତଃ ନଗ୍ନବୀଜି ଏବଂ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ହେଉଛି ଆବୃତବୀଜି। ପୁନର୍ବାର ଆବୃତବୀଜି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁଇ ବୀଜପତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀ ଉଦ୍ଭିଦ, ଯେଉଁର ବୀଜ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ସମୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପତ୍ର ବାହାରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀ ଉଦ୍ଭିଦ କହିଥାଉ। ଯେମିତି ଧାନ, ଗହମ, ଆଖୁ, ମକା, ବାଜରା, ନଡ଼ିଆ, ଘାସ, ପିଆଜ ଇତ୍ୟାଦି ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀ ଉଦ୍ଭିଦ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ବୀଜପତ୍ରୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖିବା, ମଟର, ଶିମ୍ବ, ଚଣା, କାକୁଡି, ଜହ୍ନି, ତେନ୍ତୁଳି, ବାଦାମ ଏଗୁଡିକର ଦୁଇଟି ବୀଜପତ୍ର ବାହାରିଥାଏ ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଜି ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ସମୟରେ, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ବୀଜପତ୍ରୀ ଉଦ୍ଭିଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ। ଅମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆହୁରି ବିଭକ୍ତ କରିଛେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଅନୁସାରେ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ପୋରିଫେରା,
तापरे सिलेंटेराटा, प्लाटीहेलमिन्थेस, निमाटोहेलमिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा एवं कॉर्डाटा। ए श्रेणी विभागटी तुम बही रे देइछि, तुमे तेनु करी बही रु देखिकरी सुंदर भाबरे लेखिबो एवं एहाको मने रखिबो। एठी पिला माने तुमे देखुथिबो शेषरे हेउछि एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा एवं कॉर्डाटा। मेरुदंडीय जेउ प्राणी मानकर मझी मेरुदंड बा शरीरर मस्तिष्करू बाहरी तांकर मेरुदंड हाड़ न थाए से माने मुख्यतः अमेरुदंडीय प्राणी रे जाती, किंतु एहार जो शेष विभागटी अच्छी कॉर्डाटा एटा मुख्यतः मेरुदंडीय प्राणी रे अंतर्भुक्त अच्छे। एपटे देखिबो एटी देख कॉर्डाटा मानकर एई मुख्य लक्षण थाई बोली सेमानकु आमे मुख्यतः मेरुदंडी प्राणी रो श्रेणी विभक्त करिछि। कोन कोन से विशेष लक्षण गुडिक से गुडिक जो पृष्ठ रज्जु बा नोटकड रो उपस्थिति। कॉर्डाटारे मुख्यतः पृष्ठ रज्जु बा नोटकड थाए। ए चित्र रे तुमे देखि पारुथिबो एइटी होचे नोटकड, जोटा मस्तिष्क रो आरंभ होई कि शरीर रो अधिकांश भाग पर्यंत अछि। नळाकृति पृष्ठ स्नायुरज्जु एटी तुमे देखि पारुथिबो बा नर्व कॉर्ड बोली जाहाको कहा होचे, एटा होचे नळाकृति पृष्ठ स्नायुरज्जु। पीठ ऊपर भाग रे थाए नळाकृति पृष्ठ स्नायुरज्जु एवं ग्रसनी रे गाली छिद्र। एटी तुमे देखि पारुथिबो गाली छिद्र गुडिक। जदि कॉर्डाटार बा मेरुदंडी प्राणी मानकर एही तीनोटी विशेष लक्षण अछि बोली एमाने अमेरुदंडी प्राणी मानक ठारो भिन्न। तेणु करी एही कॉर्डाटा बा मेरुदंडी प्राणी मानक मध्य आमे विशेष भाबरे सेमानकर लक्षण को नै श्रेणी विभाग करिछु। वर्तमान आमे देखिबा कॉर्डाटार श्रेणी विभाग किभଳି भाबरे होइछे। कॉर्डाटा को प्रथमे आमे प्रोटोकॉर्डाटा बोली कहूचे एवं एही प्रोटोकॉर्डाटा को आमे पुणी दुई भाग रे विभक्त करिछे। ओटे होउछे यूरोकॉर्डाटा एवं अन्यटी होउछे सेफालोकॉर्डाटा। इला माने एटा मध्य तुम बही रे एई रेखा चित्रटी पूरा पूरी अछि, तेणु तुमे बही रु देखिकिरी मध्य आराम से एई रेखा चित्रटी को तुमे प्रैक्टिस करि परिबो। एटा भी बेले बेले शॉर्ट क्वेश्चन रे आसे, नहले तुमको मने रखिबा पई सुविधा हबो। तुमे जदि अमेरुदंडी प्राणी मानकर श्रेणी विभाग, उद्भिद जगतर श्रेणी विभाग एवं प्राणी जगतर श्रेणी विभाग एही रेखा चित्र गुडी को तुमे प्रैक्टिस करिबो, ताहाले तुमको श्रेणी विभाग विषय जानिया पई सुविधा हबो एवं लेखिबा समय रे मध्य सुविधा हेबो। हैला तो एबे प्रोटोकॉर्डाटा को आमे दुई भाग भेद करिछे, यूरोकॉर्डाटा एवं सेफालोकॉर्डाटा एवं पुनर्बार याको वर्टिब्राटा भाबरे विभक्त करिछे। पुनर्बार वर्टिब्राटा को आमे एही भଳି विभक्त करिछे हेउछि साइक्लोस्टोमाटा, पाइसेस, आम्फिबिया, रेप्टिलिया, एप्स ओ मामालिया। एही भଳି भाबे आमे श्रेणी विभाग करिछे। एठी साइक्लोस्टोमाटार चित्रटा तुमे देखो, एठी साइक्लोस्टोमाटार चित्रटा तुमे देखि पारुथिबो। एटा हेउछि आदिम मेरुदंडी प्राणी। साइक्लोस्टोमाटा हेउछि आदिम मेरुदंडी प्राणी। तापरे आसीबो पाइसेस, मुख्यतः समस्त प्रकार माछ से माने होउछन एई पाइसेस रो अंतर्भुक्त हेबे। हैला तुमे जो माछ देखुछ रोही, भाकुर, मिरिकाली, खइंगा मुख्यतः मधुर जल माछ किंबा सामुद्रिक माछ हैला शार्क, सांकुच, टर्पेडो, डॉल्फिन ए सब गुडिक तुमर ए पाइसेस श्रेणी विभक्त आसीबो। से माने पानी रे रुहंती, सेमानकर गाली छिद्र थाए, सेमाने गाली सहायरे श्वासक्रिया करंती, सेमानक शरीर किभଳି डंगा भଳି थाए, सेमानक शरीर लांज थाए, पहरिबा पई डेणा थाए एवं शरीर कापी द्वारा आवृत। तो ए विशेष लक्षण को देखि ए पाइसेस रो श्रेणी विभक्त कराय। मुख्यतः समस्त प्रकार माछ एथिरे आसबे। तापरे नेक्स्ट हेउछि आम्फिबिया। आम्फिबिया को हमें मुख्यतः उभयचर प्राणी बोली कहूछु। कोन पई कहूछु? कारण से माने उभय जल और स्थल भाग रे रुहंती। मुख्यतः एथिरे को माने आसीबे? बेंग। नहीं, बेंग को हमें उभयचर प्राणी कहूछु कारण बेंगर जीवनर अर्धेक समय लार्भा अवस्था रे ये पानी रे थाए एवं माछ भଳି लांज थाए एवं गाली छिद्र सहायरे से श्वासक्रिया करे, डेणा थाए।
जोटा आम बेंग फुला बोली कहूचु एवं जेतले बय प्राप्त हेले बेंग कौन स्थल भाग को आसी थाए एवं तार फुसफुस और चर्म साहाय्य से वायुमंडल अम्लजान श्वासक्रिया ग्रहण करे तेणुकरी दुईटी अवस्था तार जीवन चक्र गति होमें उभयचर प्राणी बोली कही थाउ। तापरे नेक्स्ट होची रेप्टिलिया एमाने समस्त सरीसृप प्राणी एही रेप्टिलिया रे आसीबे। सरीसृप काहाकू कहबा जो प्राणी मानक मुख्यतः छाती एवं पोट माटी रे लागि थाए जेंति साप कुंभीर कइंच झिटिपिटी एगुड़िक सब एथिरे आसीबे रेप्टिलिया रे एवं एगुड़िक शरीरर ऊपर भाग शुष्क थाए एवं ग्रंथि विहीन थाए तेणुक मुख्यतः साप देखि पिला माने टाटी छड़ाए है तो ए सब रेप्टिलिया रे तुमर सरीसृप आसीबे। एप्स हेउछि पक्षी समस्त प्रकार पक्षी एप्स अंतर्भुक्त हेबे एवं मामालिया हेउछि समस्त प्रकार स्तन्यपायी प्राणी हैला। एई परि भाबरे आमे मेरुदंडी प्राणी मानकर श्रेणी विभाग करिछे। एठी वर्तमान तुमे देखि पारुथिबो काहेकि आमे मेरुदंडी प्राणी बोली कहूछ एठी तुमे देख मुख्यतः मेरुदंडी प्राणी मानकर मस्तिष्क गोटे खपुरी भितरे थाए हैला मस्तिष्क को सुरक्षित देबा पई ता ऊपरे जो हाडटी थाए सेटा आमे खपुरी हाड कहूचे एवं एटा होची मेरुदंड हाड जोटा आम शरीरर कोन मस्तिष्क रु आरंभ होई एठी तुमे देखि पारुथबो एटा होचे एठी ए पर्यंत होची हमर मेरुदंडी हाड एवं सेही हाड को बा सेही अस्थि को लागि करी अनेक गुडी उपास्थि मध्ये अछि एठी तुमे देखि पारुथबो हैला। तो मेरुदंडी प्राणी मानकर शरीरटी विभिन्न प्रकार अस्थि और उपास्थि जे भली भाबरे आमे गोटे मूर्तिटे करिया पई प्रथमे गोटे ढांचाटे तयारी करू सेही भली भाबरे हम शरीरटी बा मेरुदंडी प्राणी मानकर शरीर एवं एही भली भाबरे विभिन्न अस्थि और उपास्थि द्वारा गठन होइथाय। उपास्थि काहाकू कहबा जेउ हाड गुडिका कोन होउची आमे बा तरुणास्थि बा कहे नरम हाड कह जेमती कानर अग्रभाग नाकर अग्रभाग रे जो हाड संकुचित हुए से संकुचित माने जो हाड को आमे बंकी परिबा से गुडी को मुख्यतः उपास्थि आ हाथ गोड़ रे जो हाड गुडी को से गुडी को आमे मुख्यतः कोन अस्थि बोली कहूछु। वर्तमान आमे सेही भर्टिब्रेटर पुनर्बार मु से श्रेणी विभागटा कहली तुमे देखि था एटा होची साइक्लोस्टोमाटा होची आदिम स्तन्यपायी प्राणी ये मध्य परभोजे मुहरे से कौन करे माने अन्यर बा जीव शरीर रक्त संग्रह करके खाद्य ग्रहण करिथे। तापरे आसिला पाइसेस होचने मुख्यतः माछ आम्फिबिया उभयचर बेंग रेप्टिलिया होचे समस्त प्रकार सरीसृप साप झिटिपिटी इत्यादि एवं ए समस्त प्रकार पक्षी एवं मामालिया हेउछन्ते समस्त प्रकार स्तन्यपायी प्राणी एथिरे मनुष्य मध्य अंतर्भुक्त। एठी होचे एप्स रो चित्र समस्त प्रकार पक्षी देखो उट पारा पेचा बादुड़ी पेंगुइन बणी इत्यादि समस्त प्रकार पक्षी मुख्यतः एप्स रो श्रेणीभुक्त है। यापरे स्तन्यपायी प्राणी बा मामालिया समस्त उन्नत श्रेणी जीव एमानकर मस्तिष्क ज्ञानेन्द्रिय उन्नत एवं शरीर लोमयुक्त एमाने उष्म रक्तधारी एवं आदि स्तन्यपायी प्राणी प्लाटिपस एटा होचे प्लाटिपस रो गोटे विशेषत्व आदि स्तन्यपायी प्राणी प्लाटिपस अंडा दिए मात्र अन्य समस्त स्तन्यपायी प्राणी माने छुआ जन्म करे स्तन्यपान करंती। एठी तुमे देखि पारुथिबो एठी मस्तिष्क किपरि उन्नत अछि एठी मुसार मस्तिष्क बिलेई एवं मनुष्यर मस्तिष्क सेठी डॉल्फिन एवं सिंपाजीर मस्तिष्क तुमे देखि पारुथिबो मस्तिष्क उन्नत अछि एवं ज्ञानेन्द्रिय द्वारा मस्तिष्क चिंता करि पारे विचार करि पारे एवं निजर समस्त प्रकार सुविधा करि पारे एवं एठी तुमे देखि पारुथिबो गायटी स्तन्यपान करा अछि तनुकरे मुख्यतः एमानकु स्तन्यपायी प्राणी बोली कहा जाय।
एठी आमे देखि परिबा एमानकर शरीर उन्नत एवं रक्त संचालन प्रणाली मध्य उन्नत अछि। एठी माछर आमे हृत्पिंडर चित्रटी देखुचे। माछर हृत्पिंड मुख्यतः कोन दुई कोठरी विशिष्ट अलिंद नील एम्फिबियन बा उभयचर प्राणी। एमानकर हृत्पिंडटी तीन कोठरी विशिष्ट। सही परि भाबरे एठी मनुष्य बा स्तन्यपायी प्राणी मानकर हृत्पिंड चारि कोठरी विशिष्ट। एटी स्तन्यपायी प्राणी मानकर चित्र मध्य तुम देखि पारुथिबा बादुड़ी, डॉल्फिन, हाथी, मनुष्य एवं कंगारू एगुड़िक सब स्तन्यपायी प्राणी अंतर्भुक्त। तेणु स्तन्यपायी प्राणी मानकर शरीर बहुत उन्नत होता है एवं मस्तिष्क उन्नत, सेमानकर रक्त संचालन उन्नत, सेमानकर रेचन प्रक्रिया उन्नत धरणर। तेणुक एठी तुम चित्र देखि पारुछ। एठी आमे देखिबा कोन मेरुदंडर चित्र। एठी तुम देखि पारुथिबा माछर मेरुदंड हाड़ एवं यार अस्थि एवं उपास्थि। सेहि बळी भाबरे साप एवं हाथी एवं एटा होचे पक्षी एमानकर मेरुदंड हाड़ चित्रटा तुम देखि पारतो। तेणुक एमानकु मेरुदंडी प्राणी बा करडाटा बोली कहा जाय। या पर आमे देखिबा किछि एभଳି ମଧ୍ୟ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଲୋପ ପାଇଗଲେଣି କିମ୍ବା ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିବା। ତାହାଲେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣି ପାରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ବିଲୁପ୍ତ ଜାତି। ବିଲୁପ୍ତ ଜାତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋପ ପାଇ ଗଲେଣି। विलुप्त जाति बा एक्सटिंक्ट स्पीसीज एही जीव माने अन्य 50 वर्ष हेलाणी अदृश्य हो जाए छंती। पृथ्वी भारतर चिताबाघ, टास्मानिया उल्फ, पहाड़ी छेली, मेरु अंचल बाघ, डोडो, लोमस हाथी बा मामाक एहार अंतर्भुक्त। भारत महासागर मॉरिशस द्वीप देखा जाउथिया पक्षी डोडो मध्य निकट अतीत लोप पाई जाइछे एवं विराट वक्रदंत युक्त लोमस हाथी बा मामाक परि बहु जीव पृथ्वी पृष्ठर विलुप्त हो जाइछन। तेणु करी एमानकु विलुप्त जातिर श्रेणी विभाग करा जाइछे। या परे हमें देखिबा लुप्त प्राय जाति। एडी चित्र रे तुमे देखि पारुथिबो चिताबाघ, डोडो, टास्मानिया उल्फ, लोमस हाथी, मामाक एवं पहाड़ी छेली एगुड़िक मुख्यतः विलुप्त जाति। लुप्त प्राय जाति जो मानकर संख्या अति मात्रा रे कमी गलानी और जदि आमे संरक्षण न करू कि सेमानक पई किछि भी आमे सुरक्षा व्यवस्था न करू तो निकट भविष्य रे एमानक संख्या मध्य एमाने मध्य विलुप्त जातिर श्रेणीभुक्त हेबार आशंका सृष्टि हेलानी। एथिरे आसीबो बृहतकाय पांडा, पाताल गरुड़ गछ, दुई सिंह विशिष्ट, एक सिंह विशिष्ट गंडा, ग्रेट इंडियन बुस्टार्ड एवं कमंडलू गछ हला एहार अंतर्भुक्त। कमंडलू गछ चित्रटी तुम देख पिला माने एहा एक मांसाहारी गछ। ए तुम चित्रटी देखि पारुथिबो कमंडलू भली एहार आकार होइछे। एभली आकार होइछे जदि कोनोसी पोक एक परभोजी उद्भिद एटा उद्भिद हेले मध्य ये एक परभोजी उद्भिद एठी जदि कोनोसी पोक आ भितर आसे एवं यार ए घोड़नीटी आपे आपे बंद होई जाय एवं ए मुणा भितरे कोन हे जीवटी मृत्युवरण करिथाय। ए वृक्ष मध्य एक कोन लुप्त प्राय उद्भिद हेबो। वर्तमान एठी आमे चित्र देखि परता बृहतकाय पांडा एवं एक सिंह विशिष्ट एवं दुई सिंह विशिष्ट। केवल एक सिंह विशिष्ट एवं दुई सिंह विशिष्ट गंडा को आमे भारतर आसाम स्थित काजीरंगा जातीय उद्यान रे ही देखिबा को पाउछु। जदि एमानकर संरक्षण न करा जाय निकट भविष्य रे एमानक संख्या मध्य लोप पाइबार आशंका अछि। वर्तमान एठी आमे देखिबा एटे होचे पाताल गरुड़ गछ एवं एटा तो तुमे जानिलो एटा होचे कमंडलू गछ एवं ए पक्षीटीर नाम होचे ग्रेट इंडियन बुस्टार्ड हला। एटा मध्य वर्तमान लुप्त प्राय पक्षी हेबारे आसिलानी। तेणु एमानंकु संरक्षण करबाटा जरूरी। वर्तमान असुरक्षित जाति। असुरक्षित जातिर जीव काहाको कहबा एही जीव मानकर शिकार और व्यवहार अति मात्रा रे हेउचे। तेणुक एमानक पई संरक्षण पई कोनोसी विशेष सुविधा नथिबारो निकट भविष्य रे एमानक संख्या मध्य लोप पाइबार संभावना अछि।
तो एथिरे तुमर एथिरे आसीबो अनेक प्रकार औषधीय गुल्म जेतेक सब आयुर्वेदिक औषध तैयारी होचे मुख्यतः उद्भिदर विभिन्न अंशरू तैयारी होते तेणुक जो उद्भिद बेसी आवश्यक तेणु से उद्भिद संख्या धीरे धीरे कमिया लागलानी किछि सरीसृप और तृणभोजी प्राणी यार अंतर्भुक्त तेणुक एमानकर संख्या को जदि हमको अधिक मात्रा रे एमानकर शिकार को रोका न जाए तो एमाने विलुप्त हेबार संभावना अछि। यहाँ पर होची दुर्लभ जाति बा रेयर स्पीसीज ए चित्रटी तुम देखुथिबो पिला माने एटी होची आसाम रो मानस उद्यान रे थिबा सुवर्ण मर्कट मुख्यतः एटा आसाम रो मानस जातीय उद्यान रे ही देखिया को मिलुचे। देख पिला माने एमानकर शरीरटी किपरि सुनेली रंगर चर्म द्वारा घोड़ी हेछि तेणुक एमानकु सुवर्ण मर्कट बोली कहाउछि। एटा मध्य एक दुर्लभ जाति एभଳି मांकड़ सब जगह देखा मिले ना तेणु एमानकर सुरक्षा जदि न करा जाए तो भविष्य में एमानकर संख्या लोप पाइबार मध्य आशंका रही। तापरे आहुरी एमती अनेक प्रकार जीव अच्छी मु कहली जीव जगत में मुख्यतः 15 लाख रु अधिक प्रजातिर जीव अच्छा किंतु समस्त विषय जानिबा आज पर्यंत मनीष समाज में संभव हो पारे ना जेभली गभीर समुद्र रे एवं मनीषर अपहंच द्वीप गुड़े जीवजंतु एवं वृक्षराजी विषय मनुष्य आज पर्यंत जानी नहीं तेणुक एभली अनेक जीव अच्छा तेणुक एमानक आमे कम जना थिबा जातिर श्रेणीभुक्त करिछु। हेला पिला माने आज मु ए जैव विविधता चैप्टर विषय रे सम्यक धारणा देली तेणुक तुम मैंने भावुचे क्लास टी को भल भाव बुझी पारिथिबो तेणुक आस किछि प्रश्न उत्तर करबा एवं प्रश्न गुड़िक बेसिक साधारण क्वेश्चन अच्छी भावुची तुम मैंने निश्चिंत भाव में उत्तर दे पार आस प्रश्न उत्तर करवा समस्त प्रश्न गुड़ाक मुख्यतः एमसीक्यू रे अच्छी ऑप्शन 4टी ऑप्शन अच्छी ए भितरु जो उत्तर ठीक अच्छी तुम मैंने उत्तर देव। तो प्रथम प्रश्नटी हेउछि जीव मानक मध्यरे देखा जाउथिया विभिन्नता को कौन कहा जाए तार ऑप्शन गुड़िक हेउछि जीव विविधता जैव विविधता जीव जगतर विविधता ना उपरोक्त समस्त कौन हेबा उत्तर ठीक जीव मानक मध्यरे देखा जाउथिया विभिन्नता को कौन कहा जाए कह बहुत सहज उत्तर अच्छी तुम्हें कहि परिबो माइक ऑन करो माइक ऑन करी उत्तर दियो जैव विविधता ठीक भाबरे देखो जैव विविधता ठीक भाबरे देखो आउथरे जीव विविधता जैव विविधता जीव जगतर विविधता ना उपरोक्त समस्त सब गुड़ाक हेबो कौन उत्तर हेबो कह ठीक भाबरे जीव विविधता तो जैव विविधता हेबनी खाली जीव विविधता हेबो जैव विविधता हेबो कि नहीं जीव जगतर विविधता कहबानी आ ताहाले कौन हबो ऑप्शन कौन हबो गोटे ऑप्शन अछि तुमर उपरोक्त समस्त हेबो कि नहीं कह हेबो ताले आंसर हबो उपरोक्त समस्त से समान ना जैव विविधता को आमे जीव विविधता भी कहि परिबा जीव जगतर विविधता भी कहि परिबा। अच्छा द्वितीय प्रश्न देखो आधुनिक वैज्ञानिक नामकरण और श्रेणी विभाग पद्धतिर जनक किए कैरोलस लिनियस रॉबर्ट ब्राउन थॉर्नबिल ना न्यूटन कह सहज अछि आधुनिक वैज्ञानिक नामकरण और श्रेणी विभाग पद्धतिर जनक किए कैरोलस लिनियस रॉबर्ट ब्राउन थॉर्नबिल न्यूटन कैरोलस लिनियस हाँ वेरी गुड आंसर हबो कैरोलस लिनियस मनीष केउ प्रजातिर जीवर अंतर्भुक्त मनीषर प्रजातिर नामटा कौन सापियंस होमो हाइकस ना राना कौन हबो ठीक से कह मनीष केउ प्रजाति जीवर अंतर्भुक्त सापियंस होमो हाइकस राना मनुष्यर वैज्ञानिक नाम कौन कहिथिले वैज्ञानिक नाम से प्रजातिर नाम कहबो कौन वैज्ञानिक नाम थिला मनुष्यर वैज्ञानिक नाम हां कह माइक ऑन करो कह होमो हाँ वेरी गुड ठीक अच्छी आंसर हेउछि होमो पूरा ना कौन होमो सापियंस सापियंस हेउछि प्रजाति किंतु ए जाति हेउछि सापियंस एवं प्रजाति हेउछि होमो पृथ्वी रे प्राय केते लक्ष जातिर जीव थिबार अनुमान करा जाए 10 लक्ष पृथ्वी रे प्राय
वेरी गुड 15 लक्ष ठीक उत्तर 15 लक्ष। अच्छा वर्तमान देखिबा आ गोटे प्रश्न डैश एक आदि स्तन्यपायी प्राणी जे अंडा दिए तिमी बादुड़ी प्लाटिपस डॉल्फिन डैश एक आदि स्तन्यपायी प्राणी जे अंडा दिए तिमी बादुड़ी प्लाटिपस डॉल्फिन चित्र देखैथिले हाँ बादुड़ी नहीं बादुड़ी नुहे प्लाटिपस वेरी गुड प्लाटिपस होछि ठीक उत्तर प्लाटिपस केवल गोटे स्तन्यपायी प्राणी जे अंडा दिए ग्रेट इंडियन बुस्टार्ड एही जातिर पक्षी डैश जीवर अंतर्भुक्त ग्रेट इंडियन बुस्टार्ड डैश जातिर जीव अंतर्भुक्त विलुप्त जाति लुप्तप्राय जाति असुरक्षित जाति ना दुर्लभ जाति दुर्लभ जाति दुर्लभ जातिर तो मो चित्र देखैली सेटा होछि सुवर्ण मर्कट दुर्लभ जाति नुहे लुप्त प्रजाति लुप्तप्राय जाति वेरी गुड ठीक अछि तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन होछि धान एक डैश बीजपत्री उद्भिद एक दुई बहु किंबा कोनोसी नुहे धान एक डैश बीजपत्री उद्भिद एक दुई बहु एक वेरी गुड एक बीजपत्री उद्भिद बीज अंकुरोद्गम समय केवल गोटे पत्र बाहरी वेरी गुड मु भावुची तुम मैंने बहुत भल भाव बुझीच तो तुम गोटे गृह कार्य अच्छे एटा तुम करी तुमर विज्ञान शिक्षकों को देखैब प्रश्नटी हेउचे तुम आखपाखरे देखुथिबा विभिन्न प्रकार जीव मानकर स्थानीय नाम इंग्राजी नाम और वैज्ञानिक नाम लेख तुम्हें ताको कौन तुम्हें डाकुछ सेटा होची स्थानीय नाम इंग्राजी नाम लेखिबो और यार वैज्ञानिक नाम जेमती बतैली दुईटी पद लेखिबो प्रजाति जाति एवं ता तळे गार देव से भाव में वैज्ञानिक नाम लेखि जिते तुम्हें पक्षी जानूछ लेखि तुमर शिक्षकों को देखे धन्यवाद।